અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહારી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહારી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, આગમ સ્વરૂપ થાઓ તે માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાઓ એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સત ક્રમશમાં આસ્વાદ શોધીનો છે. સત ક્રમશમાં આસ્વાદ શોધીનો છે. આસ્વાદ શોધીનો છે. આસ્વાદ શોધીનો છે. વાંધાને વચકાશ, વાંધાને વચકાશ, આજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીદી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીદી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. दूसरा छोटा गाओ. दूसरा पद गाना. और ऐसे करो, 9 कलम बोलो, 9 कलम, 10 बेटर. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે ન દુબાય કે દુબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વતન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે ન દુબાય કે દુબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કથા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા ન બોલી જાય, ન બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ
સ્ત્રી પુરુષ અગન કુશ ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान मने निरंतर निर्विकार રહેવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને સમરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામીનારું કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान मने जगत कल्याण करवानो निमित्त बनवानी परम शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। जय सच्चिदानंद। શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના બોલો। जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा आप दरेक जीव मात्रमा विराजमान છો એમ જ મારામાં પણ વિરાજેલા છો। આપનો સ્વરૂપ એ જ મારું સ્વરૂપ છે। મારો સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે। હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અજ્ઞાનતાએ કરીને મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે તે સર્વ દોષોને હું આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું। તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા માંગુ છું। હે પ્રભુ મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો। ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ન કરું એવી આપ મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। हे शुद्धात्मा भगवान आप एवी कृपा करो कि हमें भेदभाव छूटी जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त થાય। અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહે। જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે દિવ્યા, જય સચ્ચિદાનંદ। શ્રીમંત બોલો દિવ્યા। સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। શ્રીમંત બોલાવો। નમો વિઠ્ઠલાય, નમો વિઠ્ઠલાય, નમો અરિહંતાનામ, નમો નમો અરિહંતાણ, અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાનામ, નમો સિદ્ધાનંદ, નમો આયલિયાનામ, નમો આયરિયાણમ, નમો વત્સયાનામ, નમો વસાયાણમ, નમો જય સચ્ચિદાનંદ। Nobody is here. લોકમ, નમો લોવે સૌ સાહુણમ, Okay. પંચનમુક્કાલો, એસો પંચન મુક્કારો, નવભાવ પનાથનો, સૌ પાવપનાસનો, મંગળાનામ તવચમ, મંગલાણમ Pranam શરસમ, cha sarvesim. પલમ હવૈ મંગલમ, પરમં Parmam ભવૈ havai mangalam. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો Om ભગવતે namo bhagavate વાસુદેવાય, vasudevaya. શિવાય, ઓમ નમઃ Om namah shivaya. જય સચ્ચિદાનંદ। Jai Satchidanand. Thank you, Divya Ben. Okay, daily prayer tonight. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे दिल को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल स्थिर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की माली बन पाऊं। हे भगवान मैं आगे अपनी माता पिता पर बात
करने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Daksh, study prayer. जय सच्चिदानंद। हे दादा खुदा, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। अब ऐसी कृपा करना कि जिससे लक्ष्य के कारण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए। Divya. हे दादा भगवान, Hey, Dada Bhagwan. हम आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के है छत्ते, दिल के हैं सच्चे, दिल भी है कच्चे, दिल भी है कच्चे, कलंग अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। हे सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દિવ્યા, તમારા હાથમાં શું છે? દિવ્યા, શું છે હાથમાં? ओके, कल का होमवर्क क्या है? किसको याद है? सेपरेशन नहीं सुनाई देता है। सेपरेशन प्रेयर रह गई है। ओह, सेपरेट। ओके, चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્चिदानंद। दक्ष। हाँ, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो तो अच्छे लगे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। रिया। Separation prayers, Riya. Yeah, we cannot hear you. Okay. आपने क्या कल क्या होमवर्क किया आप दिया था? मोनिका, you remember? नहीं आई थी ना? जय सच्चिदानंद। हमें आज ये देखना था कि हमें पूज्य भाव क्यों अपने मम्मी से पूज्य भाव क्यों नहीं आते और टीचर्स के साथ, दूसरे सभी के साथ पूज्य भाव क्यों आते हैं। Okay. Very good. कुछ आप सोचा आपने? मैंने मम्मी के लिए सोचा था सर। हाँ, बोलो। मैंने टीचर मम्मी को कंपेयर किया था कि पूज्य भाव टीचर जब होते हैं तब आता है, क्योंकि उनको देखते ही डर लगता है और साथ ही विनय का भाव आता है। बट मम्मी के लिए वो नहीं आता और मैं उनसे पहले विनय नहीं रखती हूँ, इसलिए मुझे वो भाव नहीं आता। ओके, टीचर का डर लगता है। क्यों डर लगता है? नहीं, वो जो भी मेरे से कोई भी गलती ना हो जाए, ऐसा होता है। और मम्मी तो टीचर से ही बड़ा टीचर है। हाँ, वो कभी सोचा? जरा सोचो। खुशी, ज्यादा मैंने होमवर्क नहीं किया है। अभी है आपने दीदी ने बोला उसमें से कुछ बोलो। ओके श्रेया, बाद में कुछ ही थोड़ा विचार करो। श्रेया, श्रेया, are you there? Okay, Daksh,
जय सच्चिदानंद। आज मैंने आज होमवर्क नहीं करा। नहीं, उसकी बात नहीं है। मम्मी के साथ पूज्यता भाव आते हैं कि नहीं? आज मेरे मम्मी के साथ मेरा अभाव नहीं आया था मुझे। ओके, आज नहीं आता। ओके। ए हनी, धैर्य है नाम, नाम तो हनी है। लिखा हुआ है हनी, लेकिन नाम धैर्य है। हाँ, तो वो चेंज कर सकते हैं ना आप जब लॉग इन करते हैं तो। अरे मैं नहीं जानता कैसे चेंज करते हैं। अभी भी कर सकते हैं। एनीवे, क्या वो बोलो, होमवर्क क्या था? होमवर्क तो हमारे है ना, वो का था कि अपनी मम्मी के लिए कभी दया भाव रखने का। ओके, मुझे भाव क्यों नहीं आता है? नहीं सोचा? नहीं सोचा? आते हैं उसे। दूसरी मम्मी लाने की है? नहीं, दूसरी मम्मी नहीं लाने की, यही मम्मी ठीक है। क्यों? तो क्योंकि उसको उन्होंने बहुत कुछ करा है, बाकी सब मम्मी ऐसी नहीं होती। तो ये उसको तो आपको ट्रीट तो अच्छा नहीं करते मम्मी से? क्या? हाँ, मम्मी के साथ झगड़ते हैं? मम्मी पहले ये नहीं, झगड़ते थे। मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, नहीं बोलते हैं? अभी आज के दिन नहीं बोले। वेरी गुड। श्रेया, श्रेया। जय सच्चिदानंद, सुनाई दे रहा है? यस यस यस, बोलो। हाँ। तो जब मैं देख रही थी मम्मी से बात कर रहे थे, तब मुझको मैं देख रही थी कि मुझको भाव नहीं आता था मम्मी पे, क्योंकि जब मैं टीचर से बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि भूल नहीं, हमसे भूल ना हो जाए, डांट ना पड़े, पर मम्मी के साथ ऐसे नहीं होता है। तो क्या मम्मी फालतू है और टीचर ग्रेट है? हाँ, ऐसा लगता है? हाँ, नहीं। नहीं तो क्या करेगा? कुछ नहीं करने का है? ऐसा नहीं है। हाँ, ओके। खुशी, कुछ सोचा? मैं जब मम्मी के साथ बात करती हूँ तब मुझे मम्मी के ऊपर भाव नहीं आता है। और टीचर्स के साथ बात करती हूँ तो डर लगता है कि हमने कुछ गलती कर दी और वो डांट ना जाए। और मम्मी के ऐसा क्यों नहीं लगता है? ओके, हसमुख काका, जय सच्चिदानंद। हाँ जी चैन, Okay, सॉरी पेलो लेट आयो આજે થોડું। नो प्रॉब्लम। ओके, अभी कल ऐसा हुआ था, ये है सुख और दुख का चल रहा है। तो बाद में ऐसा है कि दुख कब लगता है, जब उन लोग को मम्मी कोई कुछ करने का बोलती है ना, तो हाँ उनको दुखी होते हैं। तो बाद अच्छा। में बिहारी दादा ने बातों में हमने पूछा क्यों ऐसे होता है, तो बिहारी दादा बोला कि ओ, पूज्य भाव नहीं है। इन लोग को पूछा कि अभी पूज्य भाव क्यों नहीं आता है, आपने थोड़ा सुना ना? तो अभी ये बातें करो कि पूज्य भाव कैसे ला सकते हैं घर में। हाँ तो पहले पूज्य भाव मतलब वो जो बोले वो हमारे हित में बोल रहे हैं, ऐसा हमको हमेशा लगना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा जो कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे हमको उठने का बोल रहे हैं, चाहे हमको बैठने का बोल रहे हैं, चाहे हमको कुछ यहाँ से जाओ, चाहे हमको यहाँ से वापस आओ, जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारे 100% हित में है।
ऐसा हमको अंदर से जब तक नहीं होगा तब तक उनके प्रति हमारा पूज्य भाव खड़ा नहीं होगा। दूसरा कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए, क्योंकि उनका पूरा सारा जीवन ही, माता पिता का सारा जीवन ही बच्चों के लिए होता है। वो अपने खुद के लिए बहुत ही कम जीते हैं, बहुत ही, मतलब उसमें से कुछ बचा तो फिर वो अपने लिए जीते, बाकी जब बच्चे का आगमन होता है तब से लेकर एंड तक वो माता पिता का सारा जीवन अपने बच्चों के लिए होता है। वो अगर हमको मालूम पड़ गया कि उनका सारा जीवन ही हम लोग है, तो हमको उनके लिए पूज्य भाव होगा कि भाई ये अगर हमारे लिए जी रहे तो हमारी फर्ज है कि हमको उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बराबर ने। दूसरा दूसरा बहुत वो है कि मदर फादर हमारे पर उनके कितने सारे उपकार है। अगर एक दिन वो जो काम कर रहे हैं ना, उतना काम अगर हम एक दिन भी करेंगे ना, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि वो कर रहे हैं उसमें कितनी सारी मेहनत, कितने सारे एफर्ट्स लग रहे हैं। वो बाहर की किन 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 परिस्थितियों में जाकर हमारे लिए जो हमको जो चाहिए वो सब कुछ लाके देते हैं, ताकि हम कभी दुखी नहीं हुए। तो उनके सारे भी जितने भी सारे एफर्ट्स है, अगर आप देखेंगे सुबह से लेके मम्मी सुबह उठती है तब से लेके रात को सोती है, तब तक उनके सारे एफर्ट्स आप देखोगे ना, तो भी लगेंगे कि उनके सारे एफर्ट्स हमारे बच्चों के लिए ही है। तो ये वो जितना जितना अगर उनको मालूम पड़ेगा, मम्मी पापा की कीमत मालूम पड़ेगी, तब तक उनके लिए हमको पूज्य भाव आना रहता है। अगर वो कीमत ही मालूम नहीं पड़ रही तो मतलब वो हमारे पर उपकार कर रहे हैं और हम उनके ऊपर अपकार की दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब उनकी हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो वो क्यों प्रतीत होता है, तो को दूसरों का देख देख कर हमारे अंदर भी हो जाता है कि अगर मम्मी पापा से ये नहीं कहेंगे तो चलेगा, ये नहीं करेगा तो चलेगा। तो भगवान श्री राम जी है, तो वो भी अपने फादर की आज्ञा पालने के लिए वो 14 साल वनवास गए थे। मदर और फादर के बीच में जो कंडीशन हुआ था, बराबर, तो फादर की आज्ञा अगर नहीं चली जावे, इसके लिए वो राम भगवान थे, वो 14 साल के लिए वनवास गए थे। उन्होंने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन फादर ने प्रॉमिस किया था। वो फादर की प्रॉमिस के कारण वो उसको नीचा नहीं देखना पड़े, उसके कारण भगवान भी दूसरे दिन वहां जाने गादी पे बैठने वाले थे, और उसके बाद में वो वनवास के लिए निकल पड़े। मतलब मदर फादर की इतनी वैल्यू उनके जीवन में थी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम अगर भगवान श्री राम बन सके, तो ठीक उसी तरह हम भी हमारे जीवन में नंबर 1 पर अगर हम मदर फादर को रखेंगे तो उनके लिए हमारा पूज्य भाव खड़ा होता जाएगा। ऐसा है। हमने तो कुछ कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि अगर मदर फादर को कुछ भी चाहिए, बरोबर है, तो वो उनको मदर फादर के लिए विनय भाव कैसा रहता था, तो वो खुद जो चीज यूज करते हैं उससे ऊपर की चीज, मतलब मदर फादर अगर मारुति वैन, मतलब सादी सिंपल मारुति गाड़ी यूज करते हैं, तो वो लोग वो मारुति मॉडल से ऊपर की गाड़ी वो खुद के लिए नहीं लेते थे, पहले अपने मदर फादर को देते थे, फिर वो खुद के लिए वो ऐसी गाड़ी लेते थे। मतलब मदर फादर जो यूज कर रहे उससे कम में ही वो लोग यूज करते थे, उतना उनको विनय भाव रहता था कि पहले मैं कुछ भी सबसे बेस्ट चीज मैं मदर फादर को दूंगा, उसके बाद में यूज करूंगा। ऐसा उनको कितने सारे बड़े बड़े लोगों को ऐसा विनय भाव रहता है, उससे बड़ी चीज वो लोग यूज नहीं करते कि जब तक मेरे मदर फादर बड़ी चीज यूज नहीं करते तब तक मैं यूज नहीं करूंगा। ऐसे बहुत बड़े बड़े समाज के अंदर भी ऐसे उदाहरण है हमारे लिए। तो हमारे इसके लिए हमारे मदर फादर को हम जितना जितना पूज्य भाव से हम देखेंगे, उतना उतना हमारा अंदर पूज्य भाव खड़ा होगा। अगर हम सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो फिर वो हमको कभी दिखाई नहीं देगा, मतलब उसके लिए उनके ऊपर उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किए वो हमको देखने का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या बोला ऋषि? एक पॉइंट बोलो। काका ने ये बोला कि हमारे पेरेंट्स को सॉरी, अगर हमें वैल्यू है हमारी पेरेंट्स की तो हमें पूज्य भाव जरूर होगा। ओके दक्ष। जय सच्चिदानंद।
हाँ हाँ, ऐसा कहा कि हाँ कि अपन को पॉइंट भूल अपन को गया। ओके, हाँ। सोचो। दरियाई। ऐसा के ना राम भगवान को इतना विनय भाव आता था कि और ऐसा भी के बहुत विनय भाव आता था। बड़े बड़े लोगों के लिए भी बड़ी सैक्रिफाइस करते थे कि ऐसा भी काफी लोग ऐसा भी समझते थे कि और ना पहले ना जो भी अच्छी चीज बेस्ट टू बेस्ट चीज है पहले पेरेंट्स को देंगे, बाद में वो वापरेंगे। श्रेया। कि मम्मी पापा का पूरा मेहनत हमारे लिए होता है और जो भी बचा हुआ होता है तो वो ले लेते हैं। मोनिका, is anything left? मम्मी पापा हमारे लिए बहुत उपकार है, हमें उसे कभी भी अपकार नहीं करना चाहिए और वो हमारे लिए उपकार क्या बोलते हैं? उपकार का मीनिंग क्या होता है? हमको मालूम। जो हमें जो भी चाहे वो दे देते हैं हमारा। वो उपकार बोलते हैं। खुशी, उपकार का मीनिंग हमको समझाओ। पर शब्द मालूम है? काका हमको समझाओ, हमको भी नहीं मालूम है उपकार का क्या होता है। मम्मी पापा मेरा उपकार कैसे करते हैं? उपकार मतलब हमको कुछ भी जहां जहां हमको कुछ चीज की जरूरत पड़ती है वो अगर हमको कोई आदमी देता है तो उनका हमारे ऊपर उपकार रहता है, उपकार भाव रहता है। दादा भगवान बताते थे कि दादा भगवान ऐसा बोलते थे कि हमारे जीवन में अगर किसी ने हमको एक कप चाय पिलाई होगी, क्या बोलते थे, हमारे जीवन में अगर किसी ने हमको एक कप भी चाय पिलाई होगी तो चाय पिलाने वाले का उपकार हम उनको पूरे जीवन भर हमारे रहता था। ऐसा था, वो चाय पिलाने वाला का उपकार हम जीवन भर नहीं भूलते थे। क्या बोलते थे कि अगर पूरे जीवन में किसी ने हमको एक कप भी चाय पिलाई होगी तो उनको लक्ष्य में रहता था कि उन्होंने मेरे को एक बार ऐसी चाय पिलाई थी। ऐसा उपकार भाव उनको निरंतर रहता था। और हमको तो हमारे मम्मी पापा इतनी सारी चीजें लाके देते हैं, बराबर, रोज खाना बना के देते हैं, हमारे टाइम टू टाइम नाश्ता देते हैं, हमारे कपड़े धोते हैं, ये सब पूरे का पूरा करते हैं। तो हमको उनके प्रति कितना उपकार भाव होना चाहिए। दादा भगवान क्या कहते थे, किसी ने हमको एक कप भी चाय पिलाई होगी तो उनका उपकार हम जीवन भर भूलते नहीं है। मतलब किसी ने अगर हमारा कुछ भी काम किया है तो उनका एहसान, एहसान बोलते हैं हिंदी में, एहसान हम जीवन भर हम भूलते नहीं है। ऐसे अगर हमको हमारा कोई काम करता है तो उनका एहसान हमको जीवन भर भूलना नहीं चाहिए। भाई हमने उनको ये टाइम पे मदद किया था, तो ऐसा एहसान भाव, हिंदी में उसको एहसान बोलते हैं, गुजराती में उपकार बोलते हैं। तो हसमुख काका ऐसे होता है ना, कोई आपके ऊपर उपकार करते हैं तो वो रेसिप्रोकेट करना मांगता है। क्या करना मांगता है? रेसिप्रोकेट को क्या बोलता है दीपिका जी? प्रतिभाव क्या देंगे आप? आपको प्रतिभाव देना चाहिए ना उसके सामने। हाँ, वो तो देना ही चाहिए ना। Children, you know what that pratibha is? Reciprocate, you know? उनका खुशी। रिपेमेंट। रीपेमेंट, हाँ। ओके। जैसे हमारे घर में होता है कुछ पार्टी, हमारे बर्थडे के दिन पार्टी होती है, तो कोई हमको हमारा फ्रेंड सर्कल इनवाइट किया होता है तो हमको कुछ गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट देते तो हम उनको क्या बोलते हैं मोनिका जी? मतलब ये जो वर्ड होता है वो एकदम रिफंड टाइप होता है ना? नहीं, आपकी बर्थडे पार्टी होती है तो कोई आपको, आपका फ्रेंड है, वो आपको गिफ्ट देता है तो आप क्या बोलते हैं उनको? थैंक यू। हाँ, थैंक यू बोलते हैं ना। और मम्मी पापा
वो सब हमारे लिए इतने सारी रोज नई नई चीज लाते हैं, नए नए खाना बना लेते हैं, तो उनको हमको कभी थैंक यू बोला क्या मम्मी आज आपने हमारे लिए इतना सारा किया, आपका खूब खूब आभार। वो बच्चे फ्रेंड होता है, वो 40-50 रुपए की चीज लाते हैं, तो उनको हम थैंक यू बोलना नहीं भूलते। लेकिन मम्मी पापा इतनी सारी चीज हमको बचपन से लेके अब तक उन्होंने इतनी सारी हेल्प किया, तो उनको हमने कब थैंक यू बोला? बोला है सबने, भले बाहर से नहीं बोला लेकिन अंदर से तो होना चाहिए ना कि कितनी सारी मेहनत करते और कितने सारे रुपये खर्च के हमारे लिए कुछ चीज लाते हैं। वो फ्रेंड लाते हैं तो तुरंत उनको बोल देते हैं, मतलब फ्रेंड के साथ हमको अच्छा व्यवहार रखने का है, लेकिन मदर फादर के साथ में वो हमको अंदर समझ जाने की जरूरत है। बराबर है कि जो लोग 30-40 रुपए की चीज लाती है उनको हम तुरंत ही बोलते हैं थैंक यू, ऐसा है। और ये सब मम्मी साहब पापा इतने सारे हमारे लिए सब लाते हैं, तो उनको हमने कब थैंक यू बोला? वो हमको तपास करने की जरूरत है, वो उपकार भाव है। मालूम पड़ गया सबको? ओके दिव्यांश जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, उपकार पापा मम्मी तो इतना सारा करते हैं, लेकिन कभी उनके लिए ये फीलिंग नहीं आती, लेकिन जैसे हमें भी नहीं आती थी। लेकिन जब दादा भगवान का सुना, ये हमें किसी ने एक कप चाय पिलाई है, एक कप चाय पिलाई है, तो हम उनका उपकार सारे जिंदगी भर नहीं भूलते। लेकिन उपकार नहीं भूलने का मतलब क्या है? नहीं भूलने का मतलब मेरी तो समझ में ये आता है कि हमें उनको कुछ कहने का अधिकार नहीं है, ये करो वो करो। हम पापा मम्मी को एडवाइस नहीं देते, ये नहीं करते वो नहीं करते, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। या तो अंदर से ऐसा रहता है वो ये नहीं करते वो नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी इतना सब कुछ कर दिया है हमारे लिए, तो इसकी तो कोई नौबत ही नहीं आती है ना। क्या लगता है आपको श्रेया? चलो एक प्रश्न ये मैं पूछता हूँ, आपकी कौन सी इच्छा पापा मम्मी ने पूरी नहीं की? तो बता सकता है कौन सी इच्छा पापा मम्मी ने पूरी नहीं की? वो मोनी खुशी का तो बर्थडे था, तो मम्मी ने ना बोला था बाहर जाने का फ्रेंड के साथ। उसको कुछ सही कहा कि गलत कहा? सही कहा। तो फिर बुरा क्या लगना है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सही कहा वो खुश होकर नहीं कहते, सही कहा। जैसे अंदर से तो लगा कि बहुत गलत किया। क्या बोलते हो धैर्य? हाँ, मेरी तो हर एक इच्छा पूरी कर ली। हाँ, मेरी तो हर एक इच्छा पूरी कर ली। बोलो। अगर पापा मम्मी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कारण होता है कि नहीं? और हमें उनको सब ऐसे पूछ के ही करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा है। क्या हमारे पास पूरी समझ आ गई है कि कभी हम मार ही नहीं खाए, हमसे कोई गलत काम ही नहीं हो? ख्याल में आया? तो ये रखेंगे। और उपकारी भाव यानी कई बार हमें ऐसा लगता है कि मम्मी को समझ में ही नहीं आता है, पापा को समझ में ही नहीं आता है, मुझे उनको समझाना चाहिए। ऐसा होता है कभी? ऑल द टाइम होता है ना। हाँ, बोलते नहीं है, श्रिया भी बोलती नहीं है। ऐसा नहीं होता है कभी कभी कि मम्मी को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, बोलो। होता है। चलो बेटे जल्दी। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है आपको, हमको भी ऐसा होता था, लेकिन ये दादा के पास आकर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मुश्किल से सीखा।
ये एक बात अंदर से हो गई, उनको कोई सिखाने की बात करनी नहीं है हमें। वो बोलते हैं, डांटते हैं तो दो दवाई, कड़वी दवा समझ के पी जाने का। पी जाओगे अभी? हाँ। अभी अभी रिजोल्व दिल- करो के ये सब सुना ना, रिजोल्व करो के यस आई मस्ट डू इट। दीपक क्या बोलता है? आई क्या बोलता है? ये सिंपल फ्रेज क्या होता है? आई विल डू इट नहीं, पर क्या बोलते हैं आप? नो मैटर Come what may, I will do it. come what may, I will do it. Okay, लिखो come what may, लिखो आपका नोट come what may। ओके, तो कल के लिए बच्चे लोग, और श्रेया को क्वेश्चन है, 1 मिनट। कल के लिए जरा सोचो मम्मी पापा का वैल्यू क्या है और आप कितना हेल्प करता है उसको। ओके श्रेया बोलो। मेरा क्वेश्चन नहीं था, पर मुझको कहना था कि कल से मेरी एग्जाम शुरू हो रही है, तो मुझको आशीर्वाद देना कि मैं अच्छे से लिख पाऊँ। आपने कैसे स्टडी किया है? मैंने प्रिपेयर किया है। मिल गया आशीर्वाद? हसमुख काका का दीपिका का मिल गया? अच्छा स्टडी किया तो आके ना All the बोलो best, Father say. ऑल्सो तोरल को। तो कल से आप आने वाले हैं इस हाँ हाँ सत्संग में? ओ वेरी गुड। हाँ तोरल ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। ओके, All the जरा best. सोचना थोड़ा मम्मी का वैल्यू और आप कितना हेल्प करते हैं और पापा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. जय सत्यानंद।